L&T for 5 years, and before joining L&T, he was working with Indian Institute of Corporate Affairs as principal research associate. And IICA is a think tank for Ministry of Corporate Affairs. There he was in the research of Companies Act and innovative CSR and development courses in public policy for corporate professionals and government officers. At Kautilya, Dr. Vishnu teaches courses on statistics, research methodology, public policy framework, and regulatory frameworks in AI technology. His research lies in an intersection between technology and governance, which is very and especially contributing to what you all are learning. And his major contribution is around regulation and regulation of AI. His work in the area has been published in the Journal Sciences and Public Policy and Journal of Asian Public Policy. So, welcome, Dr. Vishnu, and over to you. The class is all yours. Person. So I did my master's in IIT Surathkal. I was working in a construction site under the sun for 3 years. So then I was when I मैं जब construction में काम कर रहा, so I got the instruction that I should mix Hindi and English. That is okay because That is completely fine. लेकिन मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला हिंदी है, सो पार्डन मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक. मैंने हिंदी कंस्ट्रक्शन साइट से सीखा था. और मैं जब मैंने आई यूज्ड टू गो टू कंस्ट्रक्शन साइट, जब लोगों को काम करते हुए देखा तो मैंने ये इमेजिन कर रहा था कि अगर एक ह्यूमन बीइंग के जगह पे रोबोट होगा तो क्या होगा, इन लोग का जॉब को क्या होने वाला है. अगर ये जो प्लानिंग में जैसे हम जितना कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इन इंडिया, मोस्ट ऑफ देम आर डिलेड. तो अगर इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं हम लोग, है ना. मैं जब हांगकांग गया था पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप लेके, सो आई वाज थिंकिंग व्हाई आर वी नॉट डूइंग have the capability of having the same standards that Hong Kong is keeping. So that is the ये मेरा motivation था to work on AI regulation and so on. लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था and the way we and where we are now, जहाँ पे हम अभी है बहुत फर्क है. हम लोग उसको टेस्लर्स थ्योरम बोलते हैं. टेस्लर्स थ्योरम ये होता है कि एआई, आप अभी जो एआई बोलते हैं वो एआई नहीं रहेगा 10 साल के बाद. अभी आप उसको एआई नहीं बोल सकते. आप वॉट एवर यू आर कॉलिंग एआई 60-50 years बैक, 50 साल पहले आप जिसको एआई बोलते हैं वो आप आज हम उसको एआई नहीं बोलते. थिंग्स हैव evolved. Used to what we call the AlphaGo, ये सब जो AI है, which used to play the game called Alpha with others, and the AI called chess जो AI खेलते हैं, those are not AI. We don't call AI now. So जो AI जो term है, there is no clear definition for it. Okay, AI lies somewhere between what we call a rule-based system and deep learning neural network. आप लोग जो अभी देख रहे हैं, they are basically towards the right end, the deep learning neural networks, the reinforcement learning, so on and so forth. आप उसको अभी AI बोलते हैं. That's the AI that we call now. And AI doesn't stand by its AI अकेला नहीं रहते. We call it AI plus. AI plus construction, AI plus manufacturing, AI plus pharmaceutical, AI plus commerce, AI plus advertisement, AI plus anything. Up AI, you can bring in AI to anything and everything. If you ignore AI, it is like gravity. When you feel, then you'll realize. You cannot ignore AI. Where we are now, you should acknowledge that there is something called AI, and you should have mastered if some of the, at least some of the abilities, the requirements that has to be taught. So मैंने आप लोग का syllabus देख रहा था, is very comprehensive, very exhaustive. Hopefully, definitely that will create a lot of value addition. But the whole point is, हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, why should I learn AI? वो नहीं चलेगा. That is not how things are going to be. Because if you're not adopting it, your competitor will adopt it. And if you don't evolve, you will be left behind.
क्योंकि दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिट्रेंचमेंट. द वे ChatGPT is now, ChatGPT is one of the generative AI tools. There are something called Perplexity. ChatGPT में प्रॉब्लम है कि ChatGPT कभी कभी हैलुसिनेट करता है. हैलुसिनेशन क्या होता है कि आप जो नहीं है उसको है करके महसूस होता है ना. कोई इंसान नहीं है हम, लेकिन उसको दिखते हैं तो हैलुसिनेट करते हैं. वो ChatGPT ऐसे करते हैं. ChatGPT कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं. आप उसका सोर्स में जाके देखें तो ऐसे नहीं है, तो इसको कहाँ से मिला वो, तो उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन. लेकिन जो परप्लेक्सिटी जो एआई है उसका हैलुसिनेशन कम रहता है. परप्लेक्सिटी में क्या होता है कि आप उसका उसका लिंक आप उसके साथ मिल जाएगा, रेफरेंस उसके साथ मिल जाएगा, आप क्लिक कर दीजिए, आप वो उस पे जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं हाँ जी ये इंफॉर्मेशन उसमें है, वो परप्लेक्सिटी में है, लेकिन चैट जीपीटी में नहीं है. तो आपके पास यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स, लेकिन कहाँ पे क्या यूज करेगा, दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च. जैसे मैं रिसर्चर है, आई ऑल्सो टीच, आई ऑल्सो डू रिसर्च, आई ऑल्सो पब्लिश. I always go with perplexity.ai, which is more authentic. But if you want an engaging conversation with somebody, आप content generator है, content creator है, you always go for chat gpt. Why? क्योंकि आपका जो human being जैसे लगता है. इनिशियली आप उसके साथ बात करते करते क्या होता है ना, आप फिर उसके साथ हिंदी में कन्वर्स करना स्टार्ट करेगा. आपको आप लगे कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज AI will learn from yourself, you, and gets more better and better. ओके तो आप उसका नाम दे सकते हैं. मैं आपको बाय बोलते हैं, मैं आपको बाय बोले, आप मेरे को क्या बोलेगा? क्या कैन आई कॉल यू अर्जुन, कैन आई कॉल यू रवि, कैन आई कॉल यू ग्रीष्मा? तो ये बोले हाँ हाँ हाँ, व्हाट शुड आई कॉल यू. ये क्या है ना, आपको ऐसे लगता है ये आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं. ये लेवल पे एआई है अभी, ये लेवल पे एआई है अभी. ये सवाल उठते हैं कि आपको क्या स्किल डेवलपमेंट चाहिए, क्या कि आपको जॉब मिले. इसको थोड़ा स्कैरी है, तो डर लगता है हमारा जॉब का क्या होगा. कंटेंट राइटिंग जो जॉब हम पहले करता था, जो 10 लोग चाहिए पहले, अभी यू कैन रिप्लेस इट विद एआई, मोस्ट ऑफ देम. मे बी यू नीड वन पर्सन हु कैन गिव एन अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट टू जनरेट द कंटेंट. उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आप गूगल में सर्च कर दिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल ऑन इट. सो इफ यू नो हाउ टू प्रॉम्प्ट, आप उसको क्या पूछना चाहते हैं. जैसे इफ आई वांट अ मटेरियल, फॉर एग्जांपल safety issues in construction or accidents in construction, so may I will ask ChatGPT what are the potential accidents in construction, what are the incidences, show me some incidences, what are the cases, है ना. उसके बाद क्या होता है कि ChatGPT will give you a response, but you are not happy with it, you give a follow up. I know that this has to be linked with the theory divided by Charles Perrow. Charles Perrow के theory होते हैं accident में. तो I asked ChatGPT, आप उसके साथ उसको जोड़ के मेरे को थोड़ा इंसाइट्स दीजिए. यानी इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तो 10 जो काम पहले 10 लोग करता था, अभी 1 person with AI can replace those 10 people. तो we say that AI cannot replace human being. AI कभी इंसान को replace नहीं कर सकता है, लेकिन but AI plus human being will replace human being and AI is required. AI alone. ठीक है, ये दिस इज वेयर यू आर नाउ. ये एज इसका है, एआई का एज है. यहाँ पे आप है ये एज, ये दिस इज द एज. सो अंटिल एंड अनलेस यू लर्न, यू वर्क ऑन योर स्किल एंड evolve, nothing is going to happen for you in respect career. That is where this course is about. एक कोर्स जो मैंने पढ़ा था, जो है इट्स हैव वेरियस कंपोनेंट्स एंड इट्स इन इनिशियल स्टेजेस. तो ये मोटिवेशन रहना चाहिए आपका कि अभी जो टेक्नोलॉजी है, जहां पे एआई हम लोग बोल रहे हैं, ये जो एआई है, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इन 10 years from now. This AI, you won't call us AI, this is AI. This is called Tesla's, this is a theorem. This is how AI is transforming. So how I can transform such that I can use the technology to improve my productivity. I can use the technology to enhance my career. I can use my technology to write better. I can, so that is the way that you have to study. You have to look at this complete AI thing. So AI क्या होता है? So this AI is works on data, right? आपका जो अभी recently DPDP rules है ना, DPDP rules क्या हो कि आप उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं. February 18 तक आपके पास टाइम है
कि डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट ये पर्सनल डेटा में है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा। जैसे आपका जो फोन नंबर है, आपका फोन नंबर मिलने से आई कैन फिगर आउट हु यू आर, इजंट इट? आपका फोन नंबर, मेरा फोन नंबर किसी को पता है कि फोन नंबर डालने से मेरा फोन बजेगा, आई विल टेक द फोन, नॉट समबडी एल्स। सिमिलरली आपका आधार नंबर, सिमिलरली आपका एड्रेस में आपके साथ आपका मम्मी पापा भी रहेगा, लेकिन और भी लोग रहेगा, बट स्टिल इट इज अ पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा। तो ये पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा कोई कंपनी आपसे कलेक्ट कर रहा है फॉर ए सर्विस। आपने बैंक से आप बैंक के साथ अपने अकाउंट खोल दिया, आपने लोन ले रहे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक के पास आपका कुछ डेटा है, लेकिन बैंक कभी भी वो डेटा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, ये डीपीडीपी एक्ट बोलता है। तो डीपीडीपी एक्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसका रूल्स अभी बना है, वो रूल्स के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, है ना? तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कंसर्न है। तो आप ये जो एआई है, वो एआई के हमको डेटा चाहिए, है ना? वो डेटा को कैसे प्रोसेस करके, उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसर, वो भी एक्ट पे पढ़ा है। डेटा प्रोसेसर नाम है, डेटा फिड्यूशियरी है, डेटा प्रिंसिपल, हम लोग सब डेटा प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये डेटा को कैसे निकाल के क्लीन करके, क्या एल्गोरिदम लगा के प्रोसेस करके आपके इंसाइट्स कैसे मिलेगा, दिस इज द होल पर्पस। ओके, सो आप इसमें कैसे अपना, हाउ विल यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग? तो हम लोग कल आईआईटी मद्रास गया हुआ था, देयर वर एमिनेंट फैकल्टीज ओवर देयर हु वर्क ऑन एआई, वी वर हैविंग अ डिस्कशंस विद देम। तो उन लोग अपना प्रोजेक्ट बता रहा था, है ना, जो एक हाउ एआई कैन बी यूज्ड, कंप्यूटर विजन, जैसे इंस्टेड ऑफ आप फिजिकली जाके एक जगह पे जाके ये नहीं देख सकते उसमें क्रैक है कोई वॉल्स में या कोई ब्रिजेस में, there can be occasions in which you can't go and find a crack. In that case, there are drone mechanisms in which the drone goes in and capture the picture. From the picture and many other variables, you can find that there is a crack and you have to do the maintenance. तो A level पे आपका technology is developing. ओके, ये लेवल पे आपका टेक्नोलॉजी। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो इवन फैकल्टीज in Telangana and Kerala, mechanical engineering, civil engineering are becoming Swiggy and other delivery boys. I'm not saying these are very bad job, nahi bol raha hu, but these are not the kind of job that they are trained for. They are engineers, they were supposed to teach them, they are supposed to because they have a PhD or maybe. So अभी क्यों ऐसे हो रहे हैं? Because we are not evolving. मैंने जब PhD करने के लिए हांगकांग गया था, irrespective of whatever department you are, they always use AI. You have to code, you have to write the code, you have to work on MATLAB, you have to work on Python. If you are in social science, you have to work on R or Stata. तो unless and until आपका पास वो डेटा में कैसे काम करना है, उसका आपके पास नॉलेज नहीं है, then you cannot survive in the job market. This is there. Okay, तो मैंने जैसे yesterday we were discussing, and in that case उसी में भी कोडिंग जो स्किल है ना, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, आर जो कोडिंग है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ऑब्सोलेट। वो स्किल भी कल के जमाने में इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूज, वो स्किल भी जाने वाला है, बिकॉज देयर आर एआई दैट कैन राइट कोड्स फॉर यू। जैसे आपने ग्रामरली पढ़ा होगा ना, आपका जो वर्ड में यू कैन इंस्टॉल ग्रामरली, इट विल गिव यू मच बेटर ग्रामर, है ना, आपका सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। There is also something called a skillbot AI, which can also give you much better sentences. Similarly, there are AI which can write codes for you. आप अगर कोडिंग में ध्यान देके बाकी आपका फंडामेंटल्स जो मैथ्स है उसमें आप फोकस नहीं करेगा, then you are going to lose the job. जैसे टाइपराइटर जो पहले यूज जॉब्स रहता था, स्टेनोग्राफर जो जॉब्स रहता था, व्हाट इज द काइंड ऑफ जॉब्स दैट दे हैड? नथिंग, राइट? तो इसमें कैसे डेवलप करेगा? There are three ways that you have to go for it. There are three fundamental pillars बोलते हैं. First is linear algebra, second one is probability, third one is multivariate calculus. These are the three foundations in which if you have the basic grasp of these three foundations, the foundation knowledge, then you can understand the model. You don't need people who can write code. Code कोई भी लिखेगा. You have AI that can write codes for you. That is not the skill that you need. You have AI that can write much better grammar than you. That is not the skill that you need. आपको fundamentals, you have to understand the fundamentals, the maths behind. That is the kind of
skill that is required. आपको कोई AI जो आउटपुट देगा, आपको ये बोलना है कि वो आउटपुट सही है कि नहीं है ना? As a human, you should say that this output is wrong. उसमें आपका काम आएगा. And you should also understand the philosophy behind any prompts. आपको ये knowledge होना चाहिए कि मेरे को क्या prompt देना है so that I get the required result. What the point? And this is where your skill has to be developed. And if you want to work in machine learning, so you should have a firm grasp on linear algebra, on probability foundations, and multivariate calculus. ये तीनों का lecture you can enormous sources है, open sources available है, and you can they will also teach some of these skills. Okay, आपको किसी समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल में सर्च करिए, मिल जाएगा. लेकिन वो फंडामेंटल्स आपको बिल्डअप करेगा. दैट इज द फंडामेंटल्स दैट पीपल आर लुकिंग फ्रॉम. नॉट द कोडिंग स्किल, नॉट नो आई एम नॉट सेइंग राइटिंग स्किल विल बिकम ऑब्सोलेट. लेकिन इफ यू शुड, राइटिंग में क्या है कि आपको ये पता होना है कि ये इनसाइट के ये आइडिया के बाद क्या आइडिया आना है, ये आइडिया के बाद ये क्या आइडिया आना है. दैट इज इट. उसके बाद जो ग्रामर पार्ट है, आई के बाद क्या होगा, एम होगा, ईस होगा, वास होगा. पहले हमको ये सिखाता था, अभी भी कंफ्यूज होते हैं, बट अभी ग्रामरली पढ़ा है कि ग्रामरली ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा. तो आपको क्या ना, एक इसको बोलते हैं असिस्टेड इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. एआई में 4 टाइप का होता है, 4 लेवल्स होते हैं. उसमें फर्स्ट है ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस. मान लो कोई भी काम है जो हम लोग हाथ से करता था, जैसे ब्रिक लेइंग होता है ना, प्लास्टरिंग होते हैं, दैट कैन बी डन बाय ए मशीन, ए सिंपल रोबोट. उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस. मान लो आप कुछ काम कर रहा तो आपको ग्रामरली आपका असिस्ट कर रहे है ना, और आप कोडिंग लिख रहे हैं पाइथन में या सी प्रोग्रामिंग है, तो एक आप कोड जीपीटी या ऑटो एमएल जो है आपको असिस्ट कर रहे है ना. और क्विलबोट जो है आपको, क्विलबोट जो एआई है आपको पैराफ्रेज करने में असिस्ट कर रहे हैं. उसको बोलते हैं असिस्टेड इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. ठीक है. अभी आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, अभी अरिज़ोना या यूएस या मेनलैंड चाइना में क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग. गाड़ी खुद से चलेगा, ड्राइवर नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम. लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, LAWS बोलते हैं. LAWS क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान सोल्जर्स के जगह पे देयर विल बी AI सोल्जर्स. लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम. ड्रोन्स इसराइल के पास है ना, that can automatically find a particular set of area and can have those kind of intelligence is already there. इसको बोलते हैं lethal autonomous weapons. You can search in the Google, LAWS. Autonomous car. This is the highest level of AI that we have. खुद से गाड़ी जा रहे हैं हमारे, so ड्राइवर्स का क्या होगा. हमारे इंडियन रोड में हमको लगता है ड्राइवर जरूर चाहिए, लेकिन वो अलग कहानी. लेकिन यूजुअली जो यूएस ये सब में जगह पे देयर आर ऑटोनोमस कार्स, बट देयर कैन बी ऑटोनोमस रेल्स, क्योंकि वो पटरी इट कैन ओनली गोस इन रेल्स ना, राइट. मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन हम लोग जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट इज इन ऑटो पायलट, हमको पता ही नहीं है ना. तो दैट इज द लेवल ऑफ, दैट इज द ऑटोनोमस सिस्टम. बट द मेन फोकस इन द शॉर्ट टर्म, जो बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म जो है, उसको बोलते हैं असिस्टेड और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम कहां पे यूज होगा. आप एआई के साथ काम करके उसका आप खुद का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, है ना. आपको कोई एम्प्लॉयर क्यों आपको जॉब देगा, क्योंकि आपको एआई के साथ काम करना पता है, और आपको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना. ये टाइप का स्किल अगर आप डेवलप करेगा ये कोर्स में या कोई भी कोर्सेस में, ऐसे करने से द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू इज योर कॉम्पिटिटर. लेट बी वेरी फ्रैंक विद इट. आप अपना फ्रेंड के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जॉब के लिए, आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं ज्यादा पैसा के लिए, क्योंकि आपको अपना फैमिली ऊपर लेके आना है ना, उसी के लिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एआई वर्क, मैच द मैथ्स बिहाइंड इट. जैसे मैंने बोला लीनियर अलजेब्रा, probability foundations and multivariate calculus. 3 है. There are hundreds of material available. MIT's का courses है. There are very good books which is available on. इसमें you have to invest. Don't spend too much time on the coding wording. That's going to be obsolete too soon. This is the kind of skill that you have to develop. Once you master the maths behind it, you can apply anywhere. इसको बोलते हैं AI plus, है ना. You are not just using AI for software as a software job. No,
ऐसा नहीं होते. For mechanical engineering, you can use AI for designing engines. You can use AI for designing the machine equipment. I am a mechanical engineer. मैंने बीटेक मैकेनिकल में किया था. मैंने एमटेक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया था. मैंने एल&डी में काम किया है. स्टील प्लांट जो है बनाने का, उसमें कंस्ट्रक्शन में मैंने काम किया था. So you can use AI for many of these optimization problems, okay, especially on design, right? Or you can use AI for understanding the behavior of the society. If you are working on social science, the humanities, social science में जो काम कर रहे हैं, आपको लोगों के बारे में पढ़ना है, the way they think. And also when COVID came, all those kind of pandemics comes, you have a huge amount of data, and from the data you have to take a decision. You will incorporate the power of AI. राइट. तो ये सब जगह पे आपका AI, दिस इज माय रिसर्च एरिया. आई हैव पेपर पब्लिश्ड ऑन दिस रिसर्च एरियाज. यू कैन रीड दोस पेपर्स. मैंने कंस्ट्रक्शन में AI का उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में लिखा है. मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च में बोथ आर पब्लिश्ड इन वेरी गुड जर्नल्स. And this is the kind of discussion that is happening. What is AI, where the skill development में आपके क्या होने वाला है, अभी आगे का क्या होगा, लोग डर रहे हैं क्या करना है ना. तो अभी जो that which refers memory जो there is no requirement for memorizing. Anyway, that requirement is already over, but there is a requirement for higher order thought process. The higher order thought process is, you can, if you have the fundamentals, and then by using AI you can always have the higher order thought process. तो अगर 100 लोग चाहिए तो उसमें बस 20 लोग से कंपनी लोग काम निकाल लेंगे. Okay, so there is a problem. अभी इसका आपने this is not a new phenomena. Okay, there is something called a singularity. Singularity क्या होता है कि human intelligence से ज्यादा machine intelligence बनता है. Machine intelligence is greater than human intelligence. Okay, machine intelligence is greater than human intelligence. इसको बोलते हैं singularity. Singularity में क्या होता है कि AI जो है खुद से, that is what is happening, खुद से when it becomes better and better, it will create new AI, and people are afraid that a human race का end होगा. That is called singularity. Okay, वो थोड़ा बहुत दूर के बारे, मतलब it can happen in next 50 years, 100 years. ऐसे लोग डर रहे हैं. Okay, so you are having, जैसे आपका मान लीजिए धरती में कोई एलियन अटैक करना है, हमको पता चले कि एलियन का सिग्नल आ गया. ये अराइवल बोल के एक मूवी पड़ा है, नेटफ्लिक्स में है या प्राइम में है. इट्स अ वेरी गुड मूवी, ऑस्कर विनर. तो आपने क्या किया कि एक एलियन का शिप पड़ा है, वो स्टारशिप ऊपर है. यू कैन हैव टू ऑप्शंस, either you have a war with it, आप उसके साथ लड़ाई करें, otherwise you create a welcome party. These are the two options that you have, and I believe in the second one. AI is the kind of alien that is there. It's actually there to help us. Why don't we incorporate in our education system? Why don't we incorporate in our daily life so that we can make ourselves better? AI is that technology that has the potential to raise the poverty, the kind of people that is below poverty line. जो लोग खाना खा नहीं पाते, जो लोग BPL में है, जो लोग के पास सोने के लिए जगह नहीं है ना, जो सड़क पे सोते हैं, उन लोग का लाइफ जो ऊपर करने की AI has the potential, क्योंकि AI has the potential to improve productivity. यही हुआ है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. जैसे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है ना, आफ्टर दैट द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट वी हैव एंड व्हाट वी आर दैट्स फॉलोइंग नाउ, it raised the level of people. Okay, so we look at AI, we welcome AI, but if you just जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में there was a window, okay, and in that window a lot of people weren't able to catch up with the skill requirement and they were left behind. Please don't be that. वो आप लोग ऐसा नहीं बनना चाहिए. You don't ignore it. If you ignore it, you will be you won't win the race. You will be left behind. So this is about me. If you have any question, please ask. Thank you. आप AI हार्मफुल है आप सोचने से क्या करें, उसके साथ झगड़ा कर, नो नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. दे आर बिग प्लेयर्स, बड़े लोग, दे हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. AI is not harmful to you. कोई भी टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं रहते हैं. It's the people who is harmful. तो आप उसके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कैसे सरवाइव करना है वो आपके हाथ में. आप वो नहीं कर पा रहे बोल के आप ये नहीं बोल सकते कि AI हार्मफुल है. ये मेरा पॉइंट है.
So those three topics, first one is linear algebra. You can go to Gilbert-Strang linear algebra. It is in YouTube. The second one is probability foundations. There is one very good faculty from IIT Madras जिसका नाम है कृष्णा जगन्नाथन. His lectures YouTube में available है. थोड़ा high level पे चलते हैं, but that is required for machine learning. Or you can also look into some of the references that he puts in the MIT courses. तीसरा है मल्टीवेरिएट कैलकुलस. योशल खान एकेडमी वाला मल्टीवेरिएट कैलकुलस उतना ही काफी है आपके लिए, लेकिन ये टाइम लगेगा 3-4 महीने का. मेरे एक दोस्त है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है, आई डोंट नो, इसको बोलते हैं अमरदास दुबे. तो मैं वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन व्हेन वी आर डूइंग PhD in HKST. ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT दिल्ली. आई डोंट नो वेदर ही जॉइंड, ही वाज अबाउट टू जॉइन. तो उन्होंने कोरा में एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा एक आर्टिकल है, बहुत लाइक्स हुआ है. जस्ट गो एंड रीड इट. He's a very nice person. He's also a very intelligent person. He has a lot of publications. He works in machine learning. Sir, how be using AI in earning and what to learn? हाँ, AI का मैंने ये बोला, जो 3 फंडामेंटल्स वो इम्पोर्टेंट है. दूसरा है कि आपका एरिया क्या है. मान लीजिए आपका एरिया सोशल साइंस है, तो जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा. वो एक पॉपुलेशन से सैंपल निकाल के उसकी इन्फ्रेंस कैसे करते हैं, दैट इज मेन थिंग. और 2 तरीका होता है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ओके, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. तो देयर आर, जैसे मैंने बोला ना, अमरदास दुबे का जो कोरा है उसमें वो 3 लेक्चर्स उसके बारे में बोला है कि फर्स्ट वन इज गिलबर्ट-स्ट्रैंग, सेकंड वन इज कृष्णा जगन्नाथन, थर्ड वन इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस इन खान एकेडमी, प्लस द व्हाट वी हैव नाउ. आपने जो किया है, बिकॉज क्योंकि आपको इन डेप्थ जाना है, तब है ना, उतना डीप जाना है, तो ये सब हम लोग करना है. और बाकी पढ़ने से हो जाएगा उसका. ये Sir, as an entrepreneur, what are the skills we should have that AI can't replace in us? Also tell what skills should we have so that companies can hire us in the trend of layoffs. Sir, first one is prompt engineering. That's the most important skill that you need. कल भी IIT मद्रास के एक फैकल्टी आके बोल रहा था, you should know something called as a prompt engineering. Okay? दूसरा चीज है कि आपको उसका अंडरलाइंग मैथ्स पता होना चाहिए. बस ये 2 काफी है आपके लिए, क्योंकि आप AI के साथ काम कर रहे हैं. आपका साथी है आपका AI. आप अपने साथी के साथ बात करना, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे बात करते, क्या पूछने से वो क्या जवाब देगा, आपको पता होना चाहिए. उल्टा पुल्टा सवाल पूछे, उल्टा पुल्टा जवाब, तो आपको क्या पूछने से क्या जवाब देना. उसके बाद वो जब जवाब आएगा, आप उसको बोलना है भाई ये जवाब गलत है, तो वो कैसे पूछने आपको पता होना चाहिए. उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. That's a very important skill that is required. कल भी हम लोग डिस्कशन हो रहा था उसमें, that was right. Second one is you should know the maths. Central limit, जो theorem से, basic theorem से, even from the start, sets, probabilities, okay, वो सब आपको अच्छा से आना चाहिए. थर्ड वन इज आपका जो फील्ड में जो आपका नॉलेज है वो आपको होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा पब्लिक पॉलिसी है, मेरा पब्लिक पॉलिसी में जो फ्रेमवर्क है मेरे को पता है, तो इसके साथ मैं काम करते हैं, मैं लोगों के साथ कंसल्टेंट, ये सब मैंने IIC में भी वही किया था. मैंने आई वाज ए कंसल्टेंट, मैंने कंसल्टेंसी में काम किया था, और आई हैव यूज्ड दिस थिंग्स. ये 3 फंडामेंटल्स है सर, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीवेरिएट कैलकुलस. मैंने ये नहीं बोलते कंप्लीटली कोड, क्योंकि कोड जो है कि वो आसान है, रिपीटेटिव जॉब. कि आपको क्योंकि ऐसा नहीं है कि AI करेगा, AI इंप्लीमेंट करेगा, डिप्लॉय करेगा, लेकिन एज ए फिल्टरर रिप्लेस क्या होता है कि 100 लोग की जगह पे 10 लोग चाहिए होगा, वही है ना, 90 लोग का जॉब जाएगा, वैसे लेवल का बोल रहा. सिक्योर मतलब क्या है थोड़ा करेक्ट. AI इज नॉट हार्मफुल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. करेक्ट बोला आपने. कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये होता है कि आपको पता नहीं क्या कब करेगा. ये इंसान कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है? ये कब क्या बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कब करेगा भगवान जाने, है ना. क्योंकि आप जब व्हेन यू गो टुवर्ड्स डीप लर्निंग की तरफ आप जाएगा, वो मॉडल को ब्लैक बॉक्स मॉडल बोलते हैं. उसका अंदर में क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क क्या होगा,
इवन डेवलपर्स कांट से, है ना। उसके बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा आपने बोला है कि चिराग यादव जी ने बोला है कि एआई इज नॉट हार्मफुल बट दे आर वेरी, करेक्ट चीज बोला है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिस्कस करना है वो आपको पता होना चाहिए। सर दैट इज वेरी गुड फॉर एआई इफ यू नो द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, लेकिन आपको अप्लाइड कैसे करना है एआई के साथ वो आपको थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके आपको, मे बी एक कोर्स में वो सब डिस्कस होगा लग रहा है ना। यस सर, पीपल कैन यूज एआई फॉर रॉन्ग पर्पस, एनी रॉन्ग पर्पस यूज कर सकते हैं ना। वही मैं बोला है कि टेक्नोलॉजी कभी हार्मफुल नहीं रहते, किसके पास रहते वो डिसाइड करते वो हार्मफुल है कि नहीं। ऐसे एआई भी वैसे ही है। अगर उसको एथिकिंग मतलब हैकिंग हैकिंग ये सब में वो यूज करते हैं। लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम वो भी एआई है ना। और मान लीजिए आपका कैमरा लगा हुआ है हर जगह पे, और कैमरा से ये पता कर सकते हैं आपको कैसे नच करे कि आप कैसे डिसीजन करेगा। इंश्योरेंस ये सब हर जगह पे एआई कैन बी यूज फॉर रॉन्ग पर्पसेस। सर ऐसे नहीं बोल सकते कि एआई विल क्रिएट मोर जॉब्स, हम लोग है ना 0 1 ऐसे नहीं बोलते कि ब्लैक और व्हाइट नहीं होते हैं। दैट डिपेंड्स आप कैसे इसको कॉप अप करके, आप उसका कैसे अपना स्किल डेवलप करके। मैं ये बता, आई कैन सेल दिस विद अ लॉट कॉन्फिडेंस दैट एक विंडो रहेगा। ये सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी सेम हुआ था कि जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा ना तो एक विंडो रहेगा। ये विंडो में कुछ लोग कॉप अप नहीं कर पाएगा, नीचे चला जाता है। कुछ लोग क्या है ये एंटिसिपेट करके अपना स्किल डेवलपमेंट करें। तो यू शुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑन दिस, यू शुड बी वेरी स्मार्ट। स्मार्ट बनना है कि क्या होने वाला है, पेपर न्यूज़पेपर्स पढ़ना है। अरे टेक्नोलॉजी में ये क्या होने वाला है, ये वाला स्किल होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी होने वाला है। तो ये मैं कहाँ पढ़े कैसे पढ़े, बहुत फ्री अवेलेबल ऑनलाइन सोर्सेस है, कैसे पढ़े वो सब आपको होना, क्योंकि आप वो विंडो है ना, वो विंडो में आप नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाने का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Python, for Python, there are a lot of sources. Python का यह एडवांटेज है कि इससे the learning curve is not steep. ये आसान से पढ़ सकते हैं, like normal language. डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड, आप कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, कि आप इंजीनियरिंग में आपकी टेरेजा सर का बुक जो अच्छा है ऑन पाइथन फंडामेंटल्स, मैंने बहुत लोग को देखा है वो यूज करते हुए। दूसरा है कि एक क्रैश कोर्स ऑन पाइथन करके एक बुक है। वो दो कोर्स बहुत अच्छे, दो बुक्स से पढ़िए, ज्यादा कोर्स से पढ़ने की जगह पे बुक से पढ़िए। बुक में क्या है ना, आप कोर्स में क्या मूवी देखने जैसा होता है, राइट। 100 चीज बोलेगा, आपका आपका दिमाग में मान लो 30 चीज चल रहा है, बाकी 70 तो 70 तो वेस्ट हो जाते हैं। बल्कि बुक ऐसा नहीं होता है। इसलिए बुक पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं, क्यों बुक पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं कि आप बुक में क्या हो कि आपका आपका भी एफर्ट लगता है उसमें, आपका ज्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि वो जो बुक जो ऑथर बोला है वो पढ़ने में आपका भी एफर्ट लगता है। तो वो एफर्ट ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप कोडिंग है बुक से पढ़िए, आप लेक्चर से कम मत पढ़िए। आप बुक्स आप लेक्चर से पढ़िए, फिर जाके बुक से वो भी कर सकते हैं ना। बुक को कभी कभी भी बुक को इग्नोर मत कीजिए, ऑलवेज लर्न फ्रॉम बुक्स। तो मैंने जो 3 लेक्चर्स ने बोला थे, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी फाउंडेशंस एंड मल्टीवेरिएट कैलकुलस, आप वो लेक्चर देखने के साथ आप वो जो बुक्स जो रेकमेंड कर रहे हैं वो भी यू शुड आल्सो रीड देम, वो भी पढ़ना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ सकते। हाँ सर, यू कैन यूज MIT ओपन कोर्सवेयर। गिलबर्ट स्ट्रैंग का लीनियर अलजेब्रा है, वो बहुत आसानी से। तो एक अच्छा लेक्चर है 3 Blue 1 Brown, खान एकेडमी का जो पहले था उसको 3 Blue 1 Brown, 3 Blue 1 Brown एक लेक्चर है, वो भी है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं सिद्धि मैडम को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगा। मैं मैडम को एक व्हाट्सएप भेज देंगे क्या बुक्स पढ़ना है, क्या लेक्चर्स देखने हैं, मैं मैडम को डाले, वो आपके साथ शेयर कर देंगे ना। सर आप टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको अपना कहाँ पे यूज करना है। क्योंकि मेरा कल हम लोग कल जो हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था तो उसका फैकल्टी